Hello friends, how are you? I hope all of you are doing very well and stay safe at your homes. Today we are going to discuss the questions of digital electronics and microprocessor which appeared in GATE 2020. We will see the questions one by one. This question appeared in GATE 2020. Now, what is the question? The state diagram of a sequence detector is shown below. State S0 is the initial state of the sequence detector. If output is 1, then which sequence this sequence detector will detect? So first of all, what is given? Initial stage is that is present state is given as S0. Okay. So what is the representation? First of all, we'll see this is the state. Okay, this is the input, this is the output. So where output 1 is observed here, here 1 is observed here. Okay, now what will happen when the state S0 is initial state, then S0 to S1 and S1 to S2 and S1 to S3, then S3 to S4, and again if this will go from S4 to S0, then this 0 will appear, and for the output to become 1, this has to go here. So that is present state and that is next state. Next state will be S1, and what is input and what is output? From S0 to S1, input is 0, output is 0. So input is 0, output is 0. So input is 0, output is 0. Now from S1 to S2, input is 1, output is 0. Input is 1, output is 0. Now from S2 to S3, input is 0, output is 0. Input is 0, output is 0. From S3 to S4, this input is 0, 1 and output is 0. Input is 1 and output is 0. And now S4 to S3, present state is S4 to S3, S4 to S3, that is input is 0 and output is 1. So which sequence this will detect? This is the sequence 0 1 0 1 0. Okay, 0 1 0 1 0. So which option is the correct one? That first option is the correct option. Okay, now we come to the second problem, that is for the components in sequential circuit shown below. TPD is the propagation delay, T setup is the setup time, T hold is the hold time. The maximum clock frequency rounded off to the nearest integer at which given circuit can operate reliably is dash megahertz. So dear friends, first of all we'll try to understand the terminology. What is the terminology for this flip-flop? That given, what is given? TPD, T setup, T hold. Okay, and for the gates, that TPD is given. So what is TPD? TPD is the propagation delay, means after how much time the output will appear after application of input. Okay, कितने इनपुट के अप्लाई होने के कितने टाइम बाद आउटपुट अपीयर होगा, दैट इज प्रोपेगेशन डिले. तो ये इससे तो सब फैमिलियर होंगे, टीपीडी. ओके, तो टीपीडी तो हमने समझ लिया कि क्या होता है. अब दो टर्म और दे रखी है, टी सेटअप टाइम एंड टी होल्ड टाइम. टी सेटअप एंड टी होल्ड. अब देखिए टी सेटअप क्या होता है. सेटअप टाइम वो टाइम है, ठीक है. सेटअप टाइम इज द मिनिमम टाइम required to keep the input at proper level before application of clock pulse. Okay, suppose ये हमारी clock pulse है, ठीक है. यहाँ पे इस clock pulse के अप्लाई होने से पहले फ्लिप फ्लॉप के का इनपुट कितने टाइम के लिए अपीयर होना चाहिए.
ठीक है, इट इज टी सेटअप टाइम इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कीप द इनपुट एट प्रॉपर लेवल बिफोर एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स। मतलब क्लॉक पल्स अप्लाई होने से पहले कुछ मिनिमम टाइम के लिए इनपुट का वहां पे रहना जरूरी है, इसको हम क्या कहते हैं, सेटअप टाइम। ओके, होल्ड टाइम क्या है? होल्ड टाइम इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कीप द इनपुट एट प्रॉपर लेवल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द क्लॉक पल्स। मतलब क्लॉक के अप्लाई होने के बाद कुछ टाइम के लिए इनपुट का वहां रहना जरूरी है, उसको हम क्या कहते हैं, होल्ड टाइम। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या है, हमें मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया ये है आपका ये पॉजिटिव एज इट ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो ये आपका है क्लॉक पीरियड। तो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम क्लॉक पीरियड हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो इनपुट होगा, ठीक है, वो कितने टाइम बाद अपीयर होगा? टीपीडी है 3 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ से इनपुट 3 नैनो सेकेंड के बाद यहाँ अपीयर होगा, 3 के बाद 2 नैनो सेकेंड के बाद यहाँ पे, 2 नैनो सेकेंड्स के बाद यहाँ पे। तो टोटल डिले, ये सपोज दिस इज इनपुट ए एंड दिस इज इनपुट बी। तो ए विल अपीयर आफ्टर हाउ मच टाइम? आफ्टर हाउ मच टाइम? 3। ए कितने टाइम बाद अपीयर होगा? देखिए ए कहाँ से आ रहा है, ऐसे, ये, ठीक है। तो ए हम क्या कह सकते हैं, टीपीडी इज 8 नैनो सेकंड, मतलब 8 नैनो सेकंड के बाद यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही बी विल अपीयर आफ्टर कितने नैनो सेकंड बाद? अब बी आने के लिए देखिए कहाँ से हमें 3 नैनो सेकंड यहाँ पे लगेंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है। तो 7 नैनो सेकंड्स के बाद ये अपीयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहीं तक क्लॉक पीरियड होगा तो इसको मिनिमम टाइम के लिए भी तो यहाँ पे रहना है, ए को और बी को। ए को मिनिमम कितने टाइम के लिए यहाँ पे रहना होगा? टी सेटअप 5 नैनो सेकंड्स के लिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं 8 + 5, यहाँ पे 13 नैनो सेकंड क्लॉक पीरियड मिनिमम होना चाहिए। और अगर हम इसको देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि 7 प्लस इसका सेटअप टाइम क्या है 4, 11 नैनो सेकंड के लिए यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि टी क्लॉक मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 13,1 नैनो सेकंड। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 13 नैनो सेकंड। तो एफ मिनिमम, एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा? एफ मैक्सिमम विल बी एफ मैक्सिमम इक्वल्स टू 1/11, ओके, इंटू 10⁻³ मेगाहर्ट्ज। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, सॉरी ये हो जाएगा 13 कि मैक्सिमम लेना है ना हमको, तो 1/13, तो ये हो जाएगा 76.9 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर लिखा है, तो 77 विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर आप 76 भी लगाते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि 76 में ये सर्किट प्रॉपरली वर्क करेगा और 77 में ये वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, इससे अगर जरा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो दिस वॉन्ट वर्क। बट इसमें लिखा कि राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो हम 77 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी 76 और 77। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मल्टीप्लेक्सर का थोड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। देखिए इसको हम करने के कई तरीके हैं, जिससे जो भी आपको सूटेबल है उस तरीके से हम कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फिगर बिलो शोज ए मल्टीप्लेक्सर वेयर S1 and S0 आर द सेलेक्ट लाइन्स, I0 and I3, I2, I0 to I3 आर द इनपुट डेटा लाइन्स, EN इज द इनेबल लाइन, FPQR इज द आउटपुट, F इज। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए इस टाइप के आप के मैप एक बना लें। सबसे पहले यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम 3 वेरिएबल्स का के मैप बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं PQR वेरिएबल्स लिख दिए,
और दिस इज एफ। ओके, यहाँ 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, जब पी क्यू 0 0 है, पी क्यू मीन्स 0 0 है, तो क्या सेलेक्ट होगा, आई नॉट सेलेक्ट होगा। आई नॉट क्या है, आर। तो यहाँ 0 0 में आर इज 0 हेयर एंड 0 0 में आर इज 1 हेयर, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब अगर 0 1 है ये, ठीक है, 0 1 में 0 सेलेक्ट होगा। 0 1 मतलब 0 1 यहाँ पे 0 और 0 1 यहाँ पे 0। अब अगर 1 0 है, 1 0 में आर सेलेक्ट होगा। 1 0 में आर इज 0 और 1 0 में आर इज 1 1 है। अब 1 1 में 1 सेलेक्ट होगा। 1 1 में यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 1 में यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे दो पेयर बनेंगे, ये आपका आ जाएगा क्यू बार आर और ये आपका आ जाएगा पी क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू बार आर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, और भी कई सारे तरीके हैं जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, आप उसी से ही करेंगे। ठीक है ना। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, सिंपल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है पी क्यू एंड आर द डेसिमल इंटीजर्स करस्पॉन्डिंग टू द 4-bit बाइनरी नंबर 1100 considered in signed magnitude 1's complement and 2's complement representations respectively. ओके, तो हेयर पी क्यू आर, यहाँ पे देखिए ये क्या है 1100, यहाँ पे यह है 1100, यहाँ पे है 1100, बट दिस इज व्हाट इज गिवन, दिस इज साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ओके, और यह है 1's कॉम्प्लीमेंट और यह है आर है 2's कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई भी नंबर साइंड मैग्नीट्यूड में लिखा जाता है, जो उसकी एमएसबी होती है, ये वाला नंबर, दिस विल रिप्रेजेंट द साइन। तो जब 1 होगा तो दिस विल बी ऑफ निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन हमने लगा दिया। अब इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 2 4, तो इसका हो जाएगा 4 - 4। अब ये 1's कॉम्प्लीमेंट है, तो अगेन ये जो शो करेगा एमएसबी, ये साइन होगा, तो दिस विल बी माइनस। ठीक है, और इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। 1's कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, 0 0 1 1, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू -3। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट विल बी द मैग्नीट्यूड, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 1 0 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि एमएसबी 1 है तो मतलब दिस विल बी ऑफ माइनस साइन, तो -4। ठीक है, अब इन तीनों को अगर ऐड करते हैं, P प्लस क्यू प्लस आर, दिस विल बिकम -4 3 7 और 4 11। ठीक है, तो अब देखिए क्या हमसे पूछा है, द 6-bit 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ P Q एंड R। तो 11 को पहले हम लिख लेते हैं। 11 को क्या हो जाएगा, 11 को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, 8 9 10 11। ठीक है, 1 0 1 1। अब हमसे 6 बिट में पूछा है, तो 4 बिट तो है, तो यहाँ पे 2 बिट 0 और लगा लेते हैं एमएसपी। ठीक है, अब -11 को हम किस तरह से लिखेंगे, इन 2's कॉम्प्लीमेंट। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट इज 1 1 0 1 0 0, इसमें हम 1 और ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 1 0 1 0 1। ओके, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो आंसर विल बी दिस। ठीक है, इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर से भी आया था, जो कि सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। इन एन 8085 माइक्रो प्रोसेसर द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स रिक्वायर्ड टू एक्सेस ए 16 किलोबाइट मेमोरी बैंक। तो 16 किलोबाइट का मतलब है 16 इंटू 1024 बाइट। ठीक है, अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर में डेटा बस 8 बिट की होती है, 1 बाइट की होती है। तो कितनी मेमोरी लोकेशंस टोटल हो जाएंगी, 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 10 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 to the power 14 बाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रेस लाइन्स कितनी हो जाएंगी, दिस 14, तो एड्रेस लाइन्स, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ये हो जाएंगे 14। अगर आपको समझना है थोड़ा, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपकी है मेमोरी। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में डेटा बस जो है वो 8 बिट की होती है। ठीक है, ये है 1 बाइट। ठीक है, ये 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। ठीक है, तो 1 2 2 to the power
14। तो हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर देयर? 14। ठीक है, तो 14 एड्रेस लाइन्स, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो है समझाने की कोशिश की थी जो गेट 2020 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और किसी भी तरीके की आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।